Good morning, good afternoon, good evening, and good night, ladies and gentlemen. How are you all doing that side? So, welcome to you all in our video. And today we'll be discussing the second part of our CDSE 2023 part 1 examination. And today we'll be covering question number 41 to 80, the next 40 questions. Okay. So, if you haven't seen the first video wherein we solved the first 40 questions, so please go and check the playlist and you will find the first 40 questions. And yep, let's get started, gentlemen. So are you all ready to get 75 plus marks in English? So yeah, let's get started. And if you haven't, like, comment and subscribe to our channel, please do it. Okay, we'll not say you again and again. Okay, so the first question is, guest is unwelcome when he stays too long. Okay, we are doing spotting error question. Okay, कह रहा है कि guest is unwelcome when he stays too long. Okay, तो guest is, okay, he stays. So obvious सी बात है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? द गेस्ट होना चाहिए था या ए गेस्ट होना चाहिए था. ठीक है, तो इन्होंने आर्टिकल का यूज नहीं किया है, इसलिए एरर कहाँ है? ए में है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 42 कहता है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम. ओके, तो यहाँ पे माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर दोनों जो इंसान है एक ही इंसान है, इसीलिए यहाँ पर हैज का यूसेज भी करेक्ट है. हैज कम. ठीक है, मेरा फ्रेंड और बेनिफैक्टर आ गया है. ठीक है, तो इसमें कहाँ एरर है? इसमें कहीं पे भी एरर नहीं है. सो योर आंसर इज डी. लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडीज एंड जेंटलमैन. ईदर ही और आई एम मिस्टेकन. ओके, तो आपको ये चीज समझना है कि ईदर का यूज जब भी होता है, ठीक है, तो इसका जो वर्ब जो होता है, ठीक है, तो वो सिंगुलर होता है. कैसा होता है? सिंगुलर होता है. ठीक है, और यहाँ पर ये जो वर्ब का यूसेज जो होता है, इसके इमीडिएट पहले में कौन सी प्रोनाउन उसके हिसाब से होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ इधर ही और आई एम मिस्टेकन. ओके, so where is the error? There is no error. This is a perfectly correct sentence. Okay, now now let's move on to the next question, ladies and gentlemen. Each of these substances are found in India. Okay, what did I tell you in the previous question कि जहाँ पे भी either, neither और वगैरह वगैरह का यूसेज होगा, ठीक है, each, every, अगर ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूसेज होंगे तो यहाँ पे वर्ब जो होंगे वो क्या होंगे? सिंगल होंगे. Each of these substances is found in India. Okay, so where is the error? The error is in C. So your answer is C. Okay, next question है, who do you wish to see? Okay, पूछ रहा है who do you wish to see. Okay, so do you think this is the right usage of pronoun? It should have been whom do you wish to see. Okay, so your answer is A. The error is in A. Let's move on to the next question, 46, gentlemen and ladies. It was one of the best speeches that has ever been made in the parliament. ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो स्पीच था वो वन ऑफ द बेस्ट था जो पार्लियामेंट में कभी भी दिया गया है. ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीच बट नॉट द बेस्ट स्पीच. ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ ये रहता इट वाज द बेस्ट स्पीच दैट हैज एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है, तब ये चीज सही होता. ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा? इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज बीन मेड इन द पार्लियामेंट. इट वाज नॉट, इट इज नॉट द केस. द यूसेज ऑफ एवर का यहाँ पर एरर है. ठीक है, यहाँ पे एरर का यूसेज नहीं होगा. It was one of the best speeches that has been made in the parliament. So your answer is B. The error is in B. Gentlemen and ladies, moving on to the next question. कह रहा I played with same bat that you used. ठीक है, कह रहा है the same bat. ठीक है, with same bat. ठीक है, तो कौन सा same bat? ठीक है, तो यहाँ पर definite है. ठीक है, तो यहाँ पे usage of the होगा. I played with the same bat that you used. Okay, so your error is in B. Okay, 47 answer is B, the same bat. Okay, the next question is,
his written assessment differs in several important respects from his oral statement. कह रहा है कि उसका written statement और उसका oral statement जो है कई मायने में अलग है, ठीक है? तो differs, you think this is the right usage of differs over here? It should have been differs. Okay, differs over here. So the error is in B. Okay. Moving on to the next question, ladies and gentlemen. कह रहा I have ordered for 3 cups of coffee. ठीक है, ordered for क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे इसका usage redundant लग रहा है, ठीक है? So I have ordered 3 cups of coffee. This is much more lucid and plain language. Okay, so your error is in A. Moving on to the next, the 50th questions. One must not boast of one's own success. Okay, तो यहाँ पर one must not, ठीक है, one का ऑलरेडी यहाँ पर यूसेज आ गया है, तो दोबारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो इधर वंस और ओन का जो यहाँ पर यूसेज है, इनमें से दो वर्ड का एक जो यूसेज है वो क्या है? रिडंडेंट. ओके, so your mistake is in C. One must not boast of one's success. Okay, either you should not use the word own or once. Okay, one must not boast of one's success or own success. Okay. So ladies and gentlemen, if you haven't liked, subscribe and commented to our channel, please do, please do. We work really hard to make this happen for you guys. Okay, so this will motivate us to work really hard and make sure that you guys get 75 plus marks in English, and finally you will get into your dream academies. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सिनोनिम्स के क्वेश्चन है, कह रहा है 51. There are plenty of graduates anxious for work. ठीक है, anxious का मतलब कि वो लोग क्या है, मतलब काफी इंटरेस्टेड है, ठीक है? Are they composed? No, they aren't composed. Are they indifferent? मतलब कोई मतलब नहीं है, नहीं. Prominent मतलब something which is very important करके, no, this is also not your answer. So your answer is B, eager. They are very eager. There are plenty of graduates eager for work. ठीक है, वो उत्सुक है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. द पावर ऑफ द मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होगे कि ये है, ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो क्या कहता है कि ए ट्रायंगल इज ए सर्किल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है ये सर्किल को लेकर ये कंस्ट्रेंड है, ठीक है? तो नेचुरलाइज तो होगा नहीं. सर्कमवेंटेड का मतलब होता है कि आप जो है अबव द रूल जा करके कुछ उसको तिकड़म भिड़ा करके कुछ कुछ रूल्स वगैरह तोड़ना, तो ये भी नहीं होगा. नोटिफाइड मतलब अवगत कराना, बताना, ये भी नहीं होगा, ठीक है? सो आंसर इज ए, कंस्ट्रेंट. ओके, moving on to the next question. We caught him eavesdropping outside the window. eavesdropping का मतलब होता है कि चुपचाप से सुनना, ठीक है? मतलब कि कोई अगर बात कर रहा है तो उसको मतलब चुपके से सुनना, ठीक है? क्या बोल रहा है उसको कहते हैं eavesdropping. ठीक है, तो इसका आंसर होगा listening secretly. और भी अगर आप ऑप्शन चेक कर लो, वॉन्डरिंग एमलेसली मतलब घूम रहा है इधर उधर एमलेसली. नो टॉकिंग लाउडली, नो रिफ्लेक्टिंग कामली, सोच रहा है चिल होके, नहीं, ये भी सही नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते. द पार्टी लीडर exhorted his members to start preparing for the formation of their government. ठीक है, तो exhorted का क्या मतलब होता है कि किसी को इंटरेस्ट जगाना, ठीक है, किसी को पुश करना, ठीक है? तो पुश करना की कह रहा है कि पार्टी लीडर कह रहा है कि आप जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन का तैयारी कीजिए, ठीक है? तो क्या करेगा? एक्सपेक्ट करेगा? नहीं. फैसिलिटेट करेगा? नहीं. डिस्करेज करेगा? नहीं. डिस्करेज तो उल्टा है, हम क्या बात कर रहे हैं? सिनोनिम का. तो आंसर आपका होगा यहाँ पर अर्ज्ड. ठीक है, द पार्टी लीडर अर्ज्ड हिज मेंबर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स. ठीक है, हॉस्पिटेबल मतलब कि बहुत वेलकमिंग थे, वार्म थे, ठीक है? तो वार्म का उल्टा होता है फ्रॉस्टी, कोल्ड, ठीक है? सरली, इल टेम्पर्ड, ठीक है? डिस्टेंट का मतलब कि दूर दूर है, इनको मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं है. कोऑर्डियल, वार्म, ठीक है? सो कोऑर्डियल इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. 56. सच ट्रेडिशनल मेथड सीम्स इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज. ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है? मान लेते ये ट्रायंगल है
और ए भी एक ट्राइंगल है। मैथमेटिक्स में कहते हैं ना ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, यहाँ पे ए और बी जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनस्वर्विंग भी नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट भी नहीं होगा, अनवेयरिंग हो सकता है, ठीक है, अनवेयरिंग हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर इसका यूसेज में देखना है, सच ट्रेडिशनल मेथड सीम्स अनवेयरिंग इन आवर टेक्निकल एज, इट इज अनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट इन आवर टेक्निकल एज, सो योर आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, मर्क्यूरियल, ठीक है। तो जो थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है। और मरकरी का क्या होता है, टेम्परेचर आगे पीछे होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, ठीक है। टेम्परामेंट मतलब वो कैसा बिहेव करता है, हाउ इज हिज बिहेवियर, ठीक है, द वे ऑफ बिहेविंग, इसकी टेम्परामेंट ऐसी है, ठीक है। राम का टेम्परामेंट बड़ा काम है, शोहन का टेम्परामेंट बड़ा रोग है, कहते हैं ना। तो मर्क्यूरियल का होगा volatile, you're pleasant, agreeable, merciful is not your answer, ठीक है। Moving on to the next, ladies and gentlemen, it is obligatory for all employees to wear protective clothing, ठीक है। obligatory का मतलब होता है compulsory, ठीक है। तो it is not voluntary, ठीक है। elective मतलब कि आपको 4-5 ऑप्शन दिया है, इलेक्ट करो, चूज करो, तो it is not elective। optional मतलब मर्जी है, पहनने का पहनो, नहीं पहनने का मत पहनो, ठीक है। तो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर, योर आंसर इज डी, synonyms, okay। obligatory means compulsory, that means essential। C has a generic predisposition to liver disease, ठीक है। predisposition का मतलब होता है susceptible, ठीक है, prone, ठीक है, मतलब इसको ऐसा हो सकता है, liver disease इसको हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, रेसिस्टेंस नो, इम्यूनिटी नो, वनरेबिलिटी यस, एग्जेम्पशन नो, ठीक है। ऐसा है नहीं कि लिवर डिजीज से वो एक्सेप्टेड है, लिवर डिजीज को लेकर की इम्यूनिटी है या फिर रेसिस्टेंस है, ठीक है। शी हैज अ जेनरिक वनरेबिलिटी टू लिवर डिजीज, सो सी वनरेबिलिटी इज योर आंसर, ठीक है। तो सी वोर अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हिज फेस, ठीक है। तो सार्डोनिक का मतलब होता है मॉकिंग, ठीक है, मजाक उड़ाना करके, ठीक है। टू मेकिंग फन ऑफ, रेस्पेक्टफुल तो नहीं होगा, रेवरेंशियल, रेवर्ड फादर कहते हैं ना, ठीक है, रेवर्ड फादर, ठीक है, पोप 16 समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे सार्डोनिक मजाक उड़ा रहे, ठीक है। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग बिहेव करना, दिस इज आल्सो नॉट योर आंसर इज ए, मॉकिंग, ठीक है। Hey, ladies and gentlemen, if you haven't liked, subscribed, and commented to our channel, please do that. We work really hard to make it happen for you guys, and we'll ensure कि आप लोग सभी का CDS, OTA, IMA, INA, AFA सारे के सारे पेपर निकले, ठीक है। और इंग्लिश में more than 70-75% ऑफ 70-75% आपको मार्क्स मिले, और ताकि आप लोग you get closer towards Dream Academy's a bit closer, okay। So please help us in our pursuit. We really work it very hard to make it happen to you guys. Okay. चलिए next question है, just तो हमारा नेक्स्ट है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का। कह रहा है कि लाइक मैनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटरपार्ट्स, इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन विच रूल्ड आउट एनी मूव टू एडजस्ट एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट जो था, ठीक है, उसको एडजस्ट करने से इंडिया मना कर दिया। इंडिया कई सारी कॉलोनी थी ऐसी जिसने मना कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, बैंक्स वर लेफ्ट विथ अनरिकवरेबल एसेट, ठीक है। इनडेप्टेड बिजनेसेस फेल्ड विद डिवैल्यूएशन मेड पॉलिटिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। devaluation made politically impossible, fall in export demand led to sustainable and deep deflation. Indebted indebted households liquidated a variety of assets to repay loans when they could, okay। तो और फिर क्या हुआ, द रियल इंटरेस्ट रेट रोज, ठीक है। कह रहा है कि इंडिया जो है एक्सचेंज रेट कर दिया, मना कर दिया इसको कॉम्प्रोमाइज करने से, ठीक है। तो क्या हो गया, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, पहला ऑप्शन देखते हैं RSPQ, ठीक है। इंडेप्टेड इंडेटेड हाउस होल्ड लिक्विडेटेड अ वैरायटी ऑफ एक्सेस टू रीपे द लोन्स। तो लोन की बात कहाँ हुई है, ठीक है, अभी लोन की बात तो हुई नहीं है, बस एक्सचेंज रेट की बात हुई है। तो ये तो आंसर आपका होने से रहा, ठीक है। अब आपके पास लेट्स से डी, ठीक है, पी से स्टार्ट करते हैं, इंडेटेड बिजनेस फेल्ड में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पूछ रहा है रियल इंटरेस्ट रेट रोज, इंडेटेड बिजनेस
liquidated a variety of assets to repay loans when they could, ठीक है। आपको ये चीज समझना है कि P और R जो है, ठीक है, P और R जो है ये रिलेटेड है, ठीक है, कि पहले इंडेटिव हाउस होल्ड लिक्विडेट जब मनी कर दिया, ठीक है, अपने लोन्स को रीपे कर देने के लिए, तब क्या हुआ कि इंडेटेड बिजनेस फेल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आर के बाद पी आएगा, एक चीज तो क्लियर है। अब देखते हैं आर के बाद पी कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। आर के बाद पी सिर्फ इसी एक ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो आर के बाद पी, सॉरी सॉरी, या तो आर के बाद पी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो क्यू एस आर पी, ठीक है, लाइक मेनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटरपार्ट्स, इंडिया मना कर दिया एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करने के लिए। फिर क्या हुआ कि फिर डीवैल्यूएशन इम्पॉसिबल हो गया, इससे क्या हो गया, डीवैल्यूएशन इम्पॉसिबल हो गया, एक्सपोर्ट का डिमांड जो है फॉल हो गया, ठीक है। और क्या हो गया कि डीप डिफ्लेशन में आ गया, और जब डीप डिफ्लेशन में आ गया तब क्या होता है कि रियल इंटरेस्ट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो इंडेटेड हाउस होल्ड थे वो अपने एसेट को लिक्विडेट करने लग गए ताकि वो लोन को रीपेमेंट कर दे। और क्या हुआ कि इंडेटेड बिजनेस जो था, जिस जिस बिजनेस में लोग जो लोन ले करके बिजनेस कर रहे थे, वो फेल हो गया, ठीक है। और फाइनली बैंक्स वर लेफ्ट विथ अनरिकवरेबल एसेट, ठीक है। सो आंसर ओवर हियर इज बी, ठीक है, क्यू एस आर पी। नाउ आगे बढ़ते हैं। 62, consider the potential effect of just a small increase in the earth's atmospheric temperature, ठीक है। अर्थ के atmospheric temperature में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। if the sea level rose only a few feet, dozens of coastal cities would be destroyed and life would change utterly. Some desert might anyway bloom, but lands now fertile might turn to desert and many hot climates could become inhabitable. एक चीज समझना है कि ठीक है, अगर जो है, अगर जो टेम्परेचर में है, ठीक है, बढ़ोतरी होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि डेजर्ट जो है माइट ब्लूम बट, ठीक है, बट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। राइज ऑफ, तो ऑब्वियस ही बात है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि पी एंड क्यू साथ में हो, ठीक है, पी एंड क्यू साथ में हो, ठीक है। तो इन दैट केस, या सो इन दैट केस लेट्स सर्च वेयर एंड ऑल पी एंड क्यू, यहाँ पे पी एंड क्यू है, ठीक है, और कहीं पे पी एंड क्यू नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं आर एस पी क्यू को, ठीक है। तो कहता है कि कंसिडर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ जस्ट ए स्मॉल इंक्रीज इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। अर्थ की एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर बढ़ेगी तो रेनफॉल पैटर्न जो है बदल जाएगा, ठीक है। एस, फिर उसके बाद है क्यू, बट लैंड्स नाउ फर्टाइल sorry, but lands now fertile might turn to desert and many hot climates could become inhabitable, ठीक है। उसके बाद कह रहा है some desert might anyway bloom, ठीक है, might anyway bloom, ठीक है। तो इसी चीज से रिलेटेड एक अगला सेंटेंस होना था, तो पी के बाद क्यों आएगा, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं। ए राइज ऑफ ओनली ए फ्यू डिग्री, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर की बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है ए राइज ऑफ ओनली ए फ्यू डिग्रीज कुड मेल्ट द पोलर आइस कैप्स एंड सबमर्ज द प्लैनेट इनटू अ इन अ शॉर्ट टाइम, सॉरी, इन अ शॉर्ट टाइम, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है, आर से स्टार्ट होगी, आर विल बी और वन, ठीक है। अब ये चेक करते हैं एस, रेनफॉल पैटर्न जो बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, सम डेजर्ट माइट वे एनीवे ब्लूम, बट क्या होगा कि जहाँ पे जो चीज़ें फर्टाइल थी वो डेजर्ट हो जाएगा, और हॉट क्लाइमेट जो है अन इनहेबिटेबल हो जाएगा, ठीक है। Or if the sea level rose a few feet, dozens of coastal cities would be destroyed and the life would change utterly. So the answer is C. आगे बढ़ते हैं जनरल, ठीक है। Yeah. So in the ancient times, the kings and royal families had their own banner and seal, ठीक है। इनकी अपनी बैनर सील वगैरह थी, इनकी अपनी लोगोज वगैरह थी, ठीक है। मान लेते हैं लोगो है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। My drawing is funny, okay. So whatever. And yes, if you haven't liked, subscribed, and commenting our channel, please do it. And
this will our videos will help you get more than 70 marks, and you will be uh, you will find your name into a UPSC list for sure. Okay, and our our intention to help you guys in getting you guys a step closer towards your academy will be fulfilled for sure. Okay, so please keep us motivating by liking, commenting and subscribing to our channel. Okay, आगे बढ़ते हैं. In the ancient times, the king and the royal families had their own banner and seal. इनका अपना banner और seal था. So the high officials commanded great respect because of the descent, ठीक है, descent, ability and character, ठीक है. मतलब उनकी पीढ़ी से जो आ रहे थे और उनकी एबिलिटी और कैरेक्टर को लेकर के जो हाई ऑफिशियल जो होते थे वो बहुत रेस्पेक्ट कमांड करते थे. ठीक है, पी कह रहा है all the members of the royal family shared in the administration as far as possible. The royal place was maintained in a great state. The king was in theory an autocrat. There were opportunities to influence the king in the formulation of policy. ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन पहला क्या है, RSPQ. ठीक है, RSPQ. द किंग वाज इन थ्योरी द ऑटोक्रेट. ठीक है, पहले तो किंग को इंट्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, फिर कह रहा है कि देयर वर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस द किंग, तो इन्फ्लुएंस द किंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. ठीक है, तो आर के बाद ही ऐसा आएगा, इतना तो कंफर्म है. इतना तो कंफर्म है कि पहले किंग को इंट्रोड्यूस करा है, फिर कह रहा है कि लोग जो वहां जो रहते थे वो किंग को इन्फ्लुएंस करते थे पॉलिसी मेकिंग में. of all the members of the royal families shared in the administration as far as possible. ठीक है, उसके बाद कहता है क्यों में द रॉयल पैलेस वाज मेंटेन इन अ ग्रेट स्टेट. ठीक है, तो RSPQ को सॉल्व करते हैं. ठीक है, कि RSPQ द किंग वाज इन थ्योरी, इनके अपने सील थे. ठीक है, फिर जो किंग जो था वो ऑटोक्रेट था और लोग जो है इनकी पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते थे. और उसके बाद फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली शेयर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज को वो लोग निभाते थे. और द रॉयल पैलेस वाज मेंटेन इन अ ग्रेट स्टेट. ठीक है, तो ये जो है पी के बाद क्यू का आना इस ऑप्शन में. ठीक है, द रॉयल पैलेस वाज मेंटेन इन अ ग्रेट स्टेट. ठीक है, ये अब्रप्टली इट्स चेंजिंग द होल टोन. ठीक है, कि सारे यहाँ पे क्योंकि द लास्ट वन has to align with this one S6. Okay, but in this case the royal family was maintained in a great state, so the high official commanded the respect because of the decent ability and character. No, this is not going to be your answer. Okay, तो एक काम करते हैं, इस चीज को पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, तो क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होगा और अपन लोग क्या बात किए कि आर के बाद एस होगा, तो ये वाली ऑप्शन होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है. पढ़ते हैं इसको. ठीक है, कि इनके अपने सील्स थे. ठीक है, और बैनर थे. उसके बाद फिर कहता है कि रॉयल प्लेस को बहुत ही ग्रेट स्टेट में मेंटेन करते थे. द किंग वाज इन थ्योरी द ऑटोक्रेट. ऑल मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली शेयर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन duties as far as possible. There were opportunities to influence the king in the formulation of policies. ठीक है, कि जो सारे जो जो फैमिली मेंबर्स थे वो क्या करते थे, ये सारे अपॉर्चुनिटीज को मतलब बुनाते थे. ठीक है, इनके पास अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो किंग के पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इन्फ्लुएंस कर सके. ठीक है, इसलिए द हाई ऑफिशियल्स कमांडेड द ग्रेट रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर डिसेंट एबिलिटी एंड कैरेक्टर. ठीक है, so B is bobbing and weaving the entire, all these 6 sentences pretty much, coherently. So your answer is B. चलिए gentlemen, आगे बढ़ते हैं. Please stick to the last of the questions. Okay, so कह रहा the rise of East Asia in the late 20th century may ultimately proved to be a more important world historical event than a collapse of communism. ठीक है, कम्युनिज्म के कोलैप्स के कंपैरिजन में ईस्ट एशिया का जो राइज है, ठीक है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है. ठीक है, तो ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिकल टर्म्स ये लास्ट की सेंटेंस है. दिस मींस दैट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय लिबरल डेमोक्रेसी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पी दिया है इन द फाइनल 2 decades of the
20th century economic growth rates in the western rim of Pacific basin. ठीक है, basically talking about Asia, western rim of Pacific basin were between 2 and 4 times higher than those in the developed economics of Europe and North America. कह रहा है कि एशिया में, ठीक है, लास्ट के 2 डिकेड में जो डेवलपमेंट हुए वो कोट इन कोट डेवलप्ड इकोनॉमिक्स ऑफ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से कई ज्यादा थे। ठीक है, कह रहा है कि इन द 20 इकोनॉमिक ग्रोथ इन द वेस्टर्न वे बिटवीन 2 and 4 टाइम, 2 से 4 गुना ज्यादा थे। ठीक है, द वाइड स्प्रेड अजम्पशन हैज बीन दैट मॉडर्नाइजेशन मींस वेस्टर्नाइजेशन, मतलब मॉडर्नाइजेशन कह रहा है कि इसको हम लोग इक्वेट करते हैं किससे, वेस्टर्नाइजेशन से, बट दैट इज नॉट द केस। ओके, सर्टनली दे आर बैलेंस, सर्टनली इसका अपोजिट बात करना, ठीक है, ये हमारा थीम है पूरे के पूरे बॉब एंड बीव करने का। ठीक है, certainly the balance of world's economy shifted markedly from the west to east in this period। ठीक है, in this period, ठीक है, कौन सा पीरियड, 2 decades। ठीक है, तो पी के बाद आ रहेगा, इतना पक्का है। ठीक है, पी के बाद आ रहेगा, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, पी के बाद आ रहा है, ठीक है, पी के बाद आर नहीं, आर के बदले पी आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, तो अपन लोगों को ये दोनों ऑप्शन बचा है। ठीक है, पहले बी चेक करते हैं क्या सीन है। ठीक है, however the notion that there is a distinctively East Indian politics is less familiar one। okay, ठीक है, तो there is a chance that Q और S, ठीक है, Q और S साथ में हो। ठीक है, Q और S साथ में क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि the widespread assumption ये है, however ये है। ठीक है, however ऐसा है। ठीक है, तो QS को साथ में होना चाहिए। ठीक है, पहले Q बाद में S। ठीक है, तो आंसर तो आपका ये होगा, क्योंकि ये तो आंसर है नहीं, बट एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। P कह रहा है द राइज ऑफ ईस्ट एशिया, ठीक है, कि कम्युनिज्म का कोलैप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा कि राइज ऑफ ईस्ट एशिया। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका क्यू है, तो द वाइड स्प्रेड अजम्पशन हैज बीन दैट, सॉरी पी है। ठीक है, द फाइनल 2 डिकेड्स, ठीक है, कि पैसिफिक रिम द इकोनॉमिक रेट्स ऑन द वेस्टर्न पैसिफिक रिम, ठीक है, पैसिफिक रिम का वेस्टर्न साइड में जो ग्रोथ हुआ वो यूरोपियन कंट्री से ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली पी, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। ओके, फिर अब क्यों आते, द वाइड स्प्रेड अजम्पशन हैज बीन दिस कि मॉडर्नाइजेशन इज इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन, बट दैट इज नॉट द केस। हाउएवर, जबकि द नोशन दैट देयर इज डिस्टिंक्टिवली ईस्ट एशियन पॉलिसी सीम्स लेस familiar one। Certainly the balance of the world economy shifted markedly from west to east in this period। Translated into political terms, this means that industrial capitalization is always accompanied by liberal democracy। So your answer is B। चलिए आगे बढ़ते हैं जनरल, फिर से बढ़ा देंगे इसका, let's make it 100। yeah, so Manipur has a long and glorious history from before the beginning of Christian era। ठीक है, before the beginning of Christian era। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 33 AD, before the beginning of Christian era। ठीक है, R से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं, then Manipur regained its independence in 1947 and merged into Indian Union in 1949। ठीक है, then Manipur became under British rule in 1891। ठीक है, the political history of Manipur could be traced back to 33 AD with the coronation of this king, ठीक है, Laren। ठीक है, तो after this king a number of kings ruled over the kingdom of Manipur। ठीक है, तो आर के बाद एस, आर के बाद एस कहाँ कहाँ आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है, अब आपको देखो, ठीक है, यहाँ पे 1919 से 26 का बात हुआ, यहाँ पे 91 का बात हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप लगाओगे तो पहले आएगा क्यू, फिर आएगा पी। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा एस। आप इसको पढ़ के देख लेना, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, और आपको बस जस्ट बाय रीडिंग दीज डेट्स, ठीक है, जब भी डेट्स वगैरह आए तो आप ये चीज भी ध्यान रखो कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट्स को कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, and this will also give you a lot of breakthrough। चलिए जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, कह रहा है इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर इरिगेशन। ओके, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट assured इरिगेशन ड्यूरिंग द ड्राई सेशन। ठीक है, ड्राई सीजन्स, the large tracts of countries are deficient in rainfall and are drought prone। ठीक है, winter and summer seasons are more or less dry in most of the parts of the country। irrigation is needed because of the spatio temporal
वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब ये स्पेशल टेम्पोरल वेरिएबिलिटी जो हो रहा है, मतलब बेसिकली जो रेनफॉल में जो वेरिएबिलिटी होता है, इस कारण इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली व्हाट वी मीन टू से इज S1, ठीक है, वाई इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड हियर, ठीक है। तो ओपनिंग इज वेरी गुड चांस दैट विल स्टार्ट बाय एस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया and Deccan plateaus constitute such area, ठीक है, which area, ठीक है, the large tracts of area of country are deficient in rainfall and are drought prone, ठीक है। तो इसको काट दो, इसको भी काट दो, आर से स्टार्ट करते हैं। इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशियल टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल इन द कंट्री, ओके। द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन, ठीक है। तो पहले आएगी आपकी आर, फिर आएगी उसके बाद पी। अब कह रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन प्लेटू, ठीक है, डेक्कन प्लेटू हैदराबाद वाली रीजन जो है बेसिकली आपका जो है ऐसा प्रोन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ड्रॉट हो सकता है, ठीक है। तो विंटर एंड समर सीजन्स आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, सो यहाँ पे आएगा क्यू। Hence, it is difficult to practice agriculture without assured irrigation during dry season. So your answer is A. ठीक है, gentlemen and ladies, please like, share, comment, subscribe कर देना if haven't done that. What we really found out is that more than 70%, almost 80% of our viewers, okay, they haven't subscribed to our channel. And solving these questions, ये आपको help karega for sure to get 70 plus marks in English, okay. And if I just thorough with these questions alone, with the previous year questions alone, you will get the hang and feel of the entire question paper, and on D-Day, you will for sure crack the examination, okay. Ladies and gentlemen, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 67, क्वेश्चन नंबर 67, विजयनगरा, ठीक है, ओके, this is not working out, let's put it 80, yeah. तो विजयनगरा or the city of victory was the name of both a city and an empire, ठीक है। तो they remembered it as Hampi, a name derived from from that of the local mother goddess Pampa Devi in its heydays, ठीक है, in its formative days, ठीक है। It stretched from river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula. The empire was founded in the 14th century, ठीक है, the empire was found in the 14th century. तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्यू से स्टार्ट होगा, ये वाले ऑप्शन को पहले करते हैं बिना कुछ आगे पीछे पढ़े कि विजयनगरा सिटी को इंट्रोड्यूस किया है, कब फाउंड किया है, 14th सेंचुरी, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, इन इट्स हेडेज, इसको और थोड़ा एलोबरेट किया है, इट्स स्ट्रेच की इसका जोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ था, तो क्यू के बाद पी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपको क्या बताया, क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी इन 1565 14 सेंचुरी के बाद आएगा, ठीक है। द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड एंड सब्सिक्वेंटली deserted, ठीक है, फिर उसको छोड़ दिया गया 1565. Although it fell into ruin in 17th 18th century, it lived on the memories of the people living in the कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब, ठीक है। कि जब भी मतलब ये जो है ये डिस्ट्रॉय किया था, डिस्ट्रॉय करने के बाद डिस्ट्रॉय को रूइन जो है आपका कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इवन इफ इट गॉट डिस्ट्रॉयड, तो कृष्णा तुंगभद्रा के द्वाब के लोगों ने इसको याद रखा, they remembered it, okay. And how they remembered it as Hampi, a name derived from that of the local mother goddess Pampa Devi, ठीक है। So your answer is QPRS, ठीक है। You got to find out a very good opening, built upon that, ठीक है, built upon that opening, ठीक है। एलिमिनेट, ठीक है, बाकी के सारे एलिमिनेट करते जाओ, एंड ऑल्सो क्रोनोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री में कब क्या हुआ, पहले जो पहले सबसे पहले हो गया 1400 1400, ठीक है। फिर उसके बाद आया 1800 18th सेंचुरी, फिर बात करते हैं 2020, ऐसे दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। सॉरी, आगे बढ़ते हैं जेंटलमैन। Okay, we delete this annotation. Okay, gentlemen, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68, during the past 2 decades, many organizations in both
the manufacturing and service sector, manufacturing both service sector में have faced dramatic challenges, dramatic changes in their business environment. ठीक है, सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हुआ कि उनका बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस आए हैं. ठीक है, अब देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं. These changes have had a significant influence in the management account system. ये लास्ट में आ रहा है. ठीक है, ये सेंटेंस 6 है, ये सेंटेंस 1 है. To succeed in today's highly competitive environment, to succeed in the environment, companies have made customer satisfaction an overriding priority. ठीक है, तो पहले तो आपका ये चीज समझो कि यहाँ पे कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, और सर्विस सेक्टर में बहुत चेंजेस आए हैं. ठीक है, ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं क्यों में. दे हैव आल्सो अडॉप्टेड new management approaches and manufacturing companies have changed their manufacturing systems and invested in new technologies. Deregulation and extensive competition from overseas companies in domestic markets have resulted in a situation in which most companies now operate in a highly competitive market. At the same time, there has been a significant reduction in product life cycle arising from technological innovation and the need to meet increasingly discriminating कस्टमर डिमांड्स. ठीक है, यहाँ पे कस्टमर डिमांड. ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका कस्टमर, कंपनीज हैव मेड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो एस और पी तो एक साथ आएगा. ठीक है, और एस और पी एक साथ कहाँ कहाँ है, एस और पी मतलब इसमें कह रहा है कि इन्होंने ये चीज समझा कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल खराब हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो और इसके बाद फिर जो है इतना जल्दी इतना रैपिड पेस में इनोवेशन हो रहा है कि दे आर अनेबल टू कीप अप विद द कस्टमर डिमांड. ठीक है, तो इसीलिए कस्टमर डिमांड से कीप अप करने के लिए क्या किया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी बना दिया है पी में. ठीक है, तो एस के साथ पी होगा. तो एस के साथ पी कहाँ है, सिर्फ एक ऐसे ही ऑप्शन में है. ठीक है, आंसर तो आपका यही होगा, बट फिर भी एक बार पढ़ते हैं क्या है. ठीक है, कि पहला, लास्ट 2 डिकेड में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस में बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ. ठीक है, उसके बाद फिर डीरेगुलेशन एंड एक्सटेंसिव कंपटीशन फ्रॉम ओवरसीज कंपनीज इन डोमेस्टिक मार्केट्स हैव रिजल्टेड इन अ सिचुएशन where the companies now operate in a highly competitive global market. ठीक है, at the same time there have been a significant reduction in the product life cycle. ठीक है, उसके बाद फिर और जो है जो कस्टमर्स के जो डिमांड्स है उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसको फुलफिल करना मुश्किल हो रहा था. ठीक है, इसलिए क्या किया कि जो इसमें सक्सीड करने के लिए, टू सक्सीड इन टुडेज हाईली competitive environment, companies have made customer satisfaction an overriding priority. ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आएगा, they have also adopted new management approaches. ठीक है, and manufacturing new management approaches जो है. ठीक है, new management approaches, does it connect with last one? These changes have a significant influence on the management accounting system. ठीक है, तो ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में भी इसको इम्पैक्ट किया है. ठीक है, so probably this management accounting system has also been changed. ठीक है, तो इसीलिए Q connects S6. ठीक है, तो this is your more logically and coherent the usage of sentences. ठीक है, so your answer over here is B, R, S, P, Q. आगे बढ़ते हैं ladies and gentlemen. ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल वाज बोर्न इन इतना डेट ऑस्ट्रिया. ठीक है, 1822. ठीक है, उसके बाद फिर 1943. Based on his experiments on total 7 characteristics in the garden P, he established the law of segregation and law of independent assortment. ये 6 नंबर की है. His pioneer work laid the foundation of science of genetics and therefore is known as the father of genetics. ठीक है, it's a good chance that we'll have a starting with P. ठीक है, तो P से कहाँ कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, देखते हैं क्या सीन है. ठीक है, पहला B पढ़ते हैं कि और इसके बाद फिर P है, फिर अब Q है. There he was exposed to, where he was exposed to. ठीक है, we don't really know. चलो, तो ये वाली ऑप्शन तो मुश्किल है. ठीक है, इन 1943 मतलब पी के बाद अगर आप इसको पढ़ोगे, ग्रेगर जॉन मेंडल वाज बोर्न इन दिस डेट. ठीक है, दिस डेट दिस ईयर ऑस्ट्रिया. ठीक है, और उसके बाद फिर इसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगर जॉन मेंडल को थोड़ा और इंट्रोड्यूस कर दिया है. और 1943 में इसके बाद आ रहा है क्रोनोलॉजी.
क्रोनोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आ रहा है मंडल बिगैन स्टडिंग इवन while being a monk at सेंट थॉमस मोनेस्ट्री, ठीक है, देयर ही वाज एक्सपोर्ट, वहां पे इसको एक्सपोज हुआ, ठीक है। तो पहले आपका आएगा पी, फिर उसके बाद आएगा टू, देयर ही वाज एक्सपोर्ट टू थ्री, ठीक है। हिज एक्सपेरिमेंट फोकस ऑन क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग क्या बात किया, गार्डन पी, ठीक है। सो आंसर इज सी, ठीक है। आप पढ़ लेना एक बार अपने टाइम से, अपने हिसाब से, दिस इज द मोस्ट कोहेरेंट वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, ठीक है। उनको सॉल्ट में बहुत एक पावरफुल सिंबल मिला जो पूरे देश को यूनाइट कर सकते थे, ठीक है। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irving stating 11 demands. Okay, the idea was to make the demand wide-ranging so that all classes within Indian societies could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. Salt was something consumed by the rich and poor alike, and it was one of the most essential items of food. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax, ठीक है। तो एक चीज समझो, 11 डिमांड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें से एक डिमांड जो था, जो सॉल्ट टैक्स था, दिस वाज द मोस्ट स्टीरिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली पी के बाद एस आएगा, तो पी के बाद एस कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। एस के पहले क्यू है, ये वाली ऑप्शन नहीं है। पी के बाद एस कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो अब अपन लोगों का स्टार्ट करते हैं। अगर पहला ऑप्शन होता है ए, ठीक है, तो महात्मा गांधी को सॉल्ट में सिंबल मिल गया, और उसके बाद जो मतलब पूरे देश को यूनाइट करते थे, उन्होंने क्या किया कि उनको, इरविन को लिखा लेटर, उन्होंने अपने 11 डिमांड्स रख दिए। उसके बाद की था कि आइडिया ये था कि जो सोसाइटी में वाइड रेंजिंग हो, ठीक है, जो सोसाइटी में, द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग, ठीक है। तो पी क्यू, सो दैट ऑल क्लासेस विद इन द सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन द यूनाइटेड कैंपेन, ठीक है। और उसके बाद है फिर द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, ठीक है। तो पहला आपका होगा पी, ठीक है, कि उनको लेटर लिखा, ठीक है। और उसके बाद फिर कहा कि ये जो डिमांड्स थे, ठीक है, ये जो डिमांड्स थे, द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, ठीक है। सो डिमांड से रिलेटेड है, तो ये होगा टू, ठीक है। अब उस डिमांड में जो सॉल्ट टैक्स को जो अबॉलिश करने की जो बात कही गई थी, ठीक है, तो वो जो था सबसे स्टीरिंग था, ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। सो ऑब्वियसली नेचुरली लास्ट में कह रहा है, फिर सॉल्ट के बारे में कह रहा है, ठीक है, कि सॉल्ट वाज समथिंग जो सब लोग कंज्यूम करते थे, ठीक है, और ये फूड का बहुत बड़ा इसेंशियल पार्ट था, ठीक है। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, रिवील्ड, तो उन्होंने, गांधी ने बताया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि इनका सॉल्ट पे टैक्स लगाना इनका सबसे बड़ा ऑपरेसिव नेचर है। सो योर आंसर इज ए। Ladies and gentlemen, how is the lecture going? I hope you are enjoying all these lectures of mine. So please like, share, comment and subscribe. Okay? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स है, ठीक है, मतलब कि उल्टा, ठीक है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट वाली लिखनी है अपन लोगों को, ठीक है। हाँ, और एक बात और यहाँ पे, कि आपको एग्जाम सिनेरियो में जो भी इजी लगे, ठीक है, उसको क्वेश्चंस को पहले करना है, ठीक है। अगर एग्जाम सिनेरियोस में मैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जनरली मैं लास्ट में करता हूँ, कॉम्प्रीहेंशन में लास्ट में करता हूँ, ठीक है। सो आई सजेस्ट यू ऑल टू डू कॉम्प्रीहेंशन एंड ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस इन द एंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रीविटी, ठीक है, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ द विट, इज द सोल ऑफ विट, ठीक है। तो ब्रीविटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को छोटा करके लिखना है, ठीक है। टर्स, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, ये सारे वर्ड ना इसके जो है सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, वर्बोसिटी, यूजिंग गॉबिलडीगूक बम्बास्टिक लैंग्वेजेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल पैकीडर्म, ठीक है, और कोई शशि थरूर जैसा कोई वर्ड यूज करना, दैट इज कॉल्ड वर्बोसिटी, ठीक है। ब्लेंड का मतलब मिलाना, द ग्रेन्स टू मेक स्मूथ पेस्ट, मिंगल का मतलब सेम होता है, ठीक है।
और हाँ एक चीज और, आप ये चीज समझो कि इसमें जो एक आंसर होगा बाकी सारे का मीनिंग ना ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। टर्सनेस का मतलब स्मॉल, इकोनॉमी मतलब होता है ना इकोनॉमी क्लास, ठीक है। बिजनेस क्लास में ज्यादा पैसा लगता है, इकोनॉमी क्लास में कम लगता है। कॉन्सिशन, ठीक है। कॉन्साइज, कॉन्साइज का यूसेज है, वर्ड को मॉडिफाई करके बना दिया, ठीक है। तो इसमें आपकी एक आंसर होगी और बाकी के सारे जो होंगे, ठीक है, वो इसके सिनोनिम से एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। मतलब अगर आपसे एंटोनिम पूछा है तो सिनोनिम देगा बाकी के ऑप्शन में, जो आंसर गलत होगा, और जो सिनोनिम पूछा है तो एंटोनिम दे देगा, ठीक है। मिंगल का मतलब ब्लेंड सेम होगा, कोलेज का मतलब सेम होगा, अमलगेमेट का मतलब सेम होता है, ब्लेंड, ठीक है। इसको सेपरेट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जेंटलमैन, ठीक है। एंड इट इज टू द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। मतलब बहुत ह्यूज, ठीक है, कंसिडरेबल, ठीक है। सब्सटैंशियल का मीनिंग सेम है, प्लेंटीफुल का मीनिंग सेम है, अबंडेंट का मीनिंग सेम है, ठीक है। ट्रिफलिंग का मतलब है तुच्छ, ठीक है, बहुत छोटा सा, मीगर, स्मॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, she has always been disdainful of people who haven't been to college. Disdainful मतलब hate, ठीक है, दिस इज अ बैड फीलिंग, ठीक है। कॉन्सेम्पचुअस, ठीक है, कॉन्सेम्पचुअस, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, एंटोनिम्स, ठीक है। तो कॉन्सेम्पचुअस का मतलब होता है डिसडेनफुल, ठीक है, हेट्रेड, ठीक है। ये इसका सिनोनिम है। डिसमिसिव, ठीक है। डिसमिसिव मतलब निकलो यहाँ से, हमें मतलब नहीं है कर, ठीक है, डिसमिसिव, ठीक है। क्या है, स्कॉर्नफुल मतलब कि, मतलब नाकमुशी कोड़ना करके इसको कहते हैं स्कॉर्नफुल, ठीक है। स्कॉर्नफुल इज आल्सो नॉट योर आंसर। रेस्पेक्टफुल, दिस इज द ऑपोजिट, ठीक है। ही हैड अ फ्रूगल लंच, ठीक है, ठीक है। फ्रूगल मतलब होता है जो कम खर्चा करता है, ठीक है, मतलब कि जितने में हो जाए उतना ही सही, ठीक है। फ्रूगल, फ्रूगल मतलब माइजर नहीं, माइजर कंजूस हुआ, ठीक है। फ्रूगल मतलब आपको, ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, 2 रोटी से पेट भर जा रहा है तो 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी नहीं खाएंगे, 4 रोटी नहीं खाएंगे, ठीक है। तो अब जो 3 रोटी 4 रोटी खाता है, ठीक है, मान लो किसी को जाना है, ठीक है, मान लो कि देहरादून में कहीं जगह से आपको एयरपोर्ट पे जाना है, ठीक है, तो कोई बस ले रहा है, ठीक है, तो हाँ मे भी बस से भी जा सकता है, बट कुछ लोग कैब लेके जाते हैं, ठीक है। तो कैब में मान लो 1000 रुपये आपको लगते हैं, तो दो गाइस आर एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है। मीगर, स्मॉल, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। स्पैरिंग, स्पैरिंग मतलब ऑल्सो कम, ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम है। योर आंसर इज एक्स्ट्रावेगेंट। इटिनरेंट, ठीक है, इटिनरेंट का मतलब होता है समवन ही इज ऑन, हु इज ऑन मूव, ठीक है, हु इज ऑन कांस्टेंट फ्लक्स, ठीक है, हु इज मूविंग हेयर एंड देयर, ठीक है, इज फोर्स्ड टू मूव एन इटिनरेंट लाइफ, द लाइफ ऑफ बेगर, ठीक है, द लाइफ ऑफ बेगर। वेगाबॉन्ड, ठीक है, वेगाबॉन्ड, ठीक है। वेगरेंट, वेगाबॉन्ड, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो इटिनरेंट मतलब जो घूमते रहता है इधर उधर, ठीक है, वह कहीं रहने खाने का ठिकाना नहीं है। तो वेगरेंट का मतलब होता है इटिरांट, ठीक है। रोविंग भी सेम होता है। नोमैडिक, चरवाहा होता है ना, नोमैडिक, 6 महीना यहाँ रह लिए, 6 महीना ऊपर रह लिए, ठीक है। गुज्जर बकरवाल एनसीईआरटी में पढ़े होगे। और 76 में तो इसका उल्टा अपोजिट आपसे पूछा है, तो आंसर है सेटल्ड, ठीक है। Now moving on to the next question, ladies and gentlemen, 77, his malicious intentions were aborted, ठीक है। इसकी malicious, ठीक है, इट्स अ बैड इंटेंशन। pernicious का मतलब होता है harmful, ठीक है, harmful, ठीक है, तो pernicious is not yours है। spiteful मतलब hateful, ठीक है। benevolent, ठीक है, benevolent मतलब it's a feeling of benevolency, ठीक है, it's a good feeling, ठीक है। malicious is a negative feeling, ठीक है। हिज मलिशियस एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब किसी को परेशान करना, कुछ भी करना, ठीक है, मतलब बिना मतलब का चिढ़ाना, दिस आर द मलिशियस एक्टिविटीज, ठीक है। बेनोवलेंट मतलब उदार है, ठीक है, यार दे आर वेरी काइंड हार्टेड, ठीक है। विंडिक्टिव का मतलब वही होता है रिवेंजफुल, ठीक है, विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, ठीक है। हाँ मेरे को ये कर दिया तो हम भी वो करेंगे, तो उसको कहते हैं विंडिक्टिव। तो बेनोवलेंट उदार है, ठीक है, समझे, गांधी जी जैसा। तो मैंने मैलिशियस का उल्टा क्या होगा, विंडिक्टिव। कॉमिक्स टेंड टू परपेचुएट, परपेचुएट मतलब इंफिनिटी, ठीक है, नेवर एंडिंग, ठीक है, नेवर एंडिंग, ठीक है। तो परपेचुएट का मतलब नेवर एंडिंग, तो सीज का क्या मतलब होता है, एंडिंग, ठीक है। सस्टेन मतलब चलते जाना कंप्लीटली। मेंटेन मतलब टू टू कीप गोइंग। कंजर्व मतलब बचा करके रखना, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है, नॉट एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। हम लोग एंटोनी पे काम कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो परपेचुएट का उल्टा होता है सीज।
आगे बढ़ता है, कृष्णा इज रीडाउटेबल, ठीक है, रीडाउटेबल का मतलब होता है चिर प्रतिद्वंदी, ठीक है, वेरी फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल इज इट्स सिनोनिम, ठीक है, फियरसम, ठीक है, आउ इंस्पायरिंग, ठीक है, इज लाइक oh my god he's such a competitor, ठीक है, something like that, ठीक है, something he's like giving a very good competition, like for example Neeraj Chopra giving competition to the world champions, okay, in the Olympics, ठीक है, so he was Neeraj Chopra was a रीडाउटेबल कॉम्पिटिटर, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा, अनइम्प्रेसिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है, द मूवी इज अबाउट द फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड कंटेम्प्ररी आइडियाज, फ्यूजन मतलब मिक्सिंग, ज्वाइनिंग, बॉन्डिंग, blending is not your answer, separation is your answer, ठीक है। So ladies and gentlemen, with this we come to an end to this part B of solving 2023 का फर्स्ट वाला पेपर, ठीक है। और जो जो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज 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 डू दैट, this helps us a lot, this motivates us a lot, okay, and let me know in comment section what do you think about all this lecture, आपको क्या हेल्प कर रहा है, आपको क्या अलग चाहिए, ठीक है, और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, what do you guys want to know, listen, और you know, please do like, share and subscribe for sure, yeah, okay, समझे, चलो ladies and gentlemen, bye, have a nice day, जय हिंद।